गुड इवनिंग सर। सब में एजेंडा फुट रहे, राइट? तो पहला टर्म जो आता है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग. What do you people understand by the term programming? You can raise your hands, don't speak directly. What do you people understand by the term programming? Programming होती क्या है? It's a very simple question, right? Many of you might have done programming in your real life. So I want to understand what is programming from your perspective. मैं एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग समझना चाह रहा हूँ कि where does this class stand in terms of understanding these things. ठीक है फैजान, आपसे ही स्टार्ट करते हैं, बताइए. Good evening sir. Hello. Can you hear me sir? हाँ जी. How was Yeah, I can hear you. Yes. Okay sir. So the programming sir, it's like in my perspective, it's like giving instruction to the computer sir to make it to do what we want. Like sir, just like telling a story or giving direction to a friend or something. That Okay. we call as a programming sir. Got it. Yes, nice definition. So I would just make a little correction to it. Folks, please, if you want to write down, you can, because I'll be giving you a number of definitions, right? So you need to write them down. ठीक है. And please take things more seriously from here onwards. Things are going to get complex. HTML CSS वाले दिन गए कि जहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया है, कमांड दिया, and things are done. We are stepping into the world of logic. And logic डेवलप करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी. अगर मैं 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ, आपको खुद 10 घंटे जाके प्रैक्टिस करनी होगी. Then only you'll be able to relate to things, right? So it's going to be a difficult phase in JavaScript. Difficult in the sense of आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा. ठीक है, खुद से बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको. So make this sure. और जितना होमवर्क मैं दे रहा हूँ, if you don't complete it within time, ठीक है, believe me on this, आप पीछे रह जाएंगे. So I don't want that to happen as well. Anyways, let's continue. ठीक है. So you can write it down. Programming is nothing. Programming is providing instructions to a computer system in order to perform computations. Programming is providing instructions to a computer system in order to perform computations. बस खत्म, इतना ही है programming. Nothing more, nothing less. बाकी जितनी चीजें होती हैं, creating a website, right, liking a post, writing a story, XYZ, these all at the end are computations. ठीक है. Back end में behind the scene everything is computation. हर एक चीज क्या होती है? Computation होती है, right? So programming in general is nothing but providing instructions to the computer system to perform computations. ठीक है. अब let me ask you people again, raise hands. What is the language which computer understands, or what does computer understand? Maybe I've discussed this before as well, but आपका computer समझता क्या है? ठीक है, we have good number of hand raises. Nice. 13 people have raised their hands. 14. Okay, that's good. 16. Awesome. 17. Nice. ठीक है. So Ajit, maybe we want to go with you. Sir, binary language. Binary language, yeah, simply bits. It's not a language. हाँ सर. ठीक है. तो मैं आज, ठीक है, fine. Folks, you can keep your hands down. Just give me a second. Yeah. ठीक है. So what were we discussing? Yes. So what terms do computers understand? So the answer to that is bits or binary digits, right? So binary digits or bits. You don't call it as binary language. You call it as bit. You call it as bits or binary digits, which are 0 and 1. वो explain कर सकता है इसके पीछे का क्या logic है? What is 0 and 1 in terms of computer science? एकदम कोर में जाके समझना है. I don't want this class to be, देखिए, first of all, आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है, you can raise your hand. ठीक है. This is not an interview. This is not a test. कोई टेस्ट नहीं चल रहा है where people are judging you. ऐसा कुछ नहीं है. I want this class to be very much collaborative. ठीक है, कि जितना मैं बोलूं उतना ही आपके end से भी आना चाहिए, right? So just tell me कि what is 0 and what is 1 when we talk about computer science. 0 और 1 का मतलब क्या है? ठीक है. विवेक, you can go Yes, ahead. sir. Sir, like bits are a single digit, either ones or zero. Computers group bits into bytes, which are 8 bits in it. And in the binary system, That's an additional language. I would stop you here. That's an additional language. We'll get into that. But my question was एकदम simple. कि what is 0 and what is 1 when we talk sir, about 1 refer to an on or a true value, while 0 refer to off or false. What do we mean by on and off? Like sir, true or a 0 means false in a computer. ठीक है, that you are getting into propositional logic. ठीक है, that itself is called as propositional logic. That's a different subject altogether. But ठीक है, let me ask somebody else as well. But whatever you said was correct, but not the answer to my question. Nihar. Okay. प्रियम, आप बताइए. Sir, it's based on 0 and 1. It's a binary code, and the meaning is 0 represent the false value and 1 represent the true value. When it's circuit, when we program some kind of circuit or something, it's 0 represent 0 to its working performance is off, and I think 1 represents the working performance is activate or something. I think so. Okay, you are quite close. So see, folks, बहुत आसान है. कंप्यूटर किस पे चलता है? कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, राइट? इजी.
Electricity में क्या होगा? Either the current will go or it will not. That's the only thing which can happen. So when the current is passing, that state is called as 1. When the current is passing in a wire, not computer, when the current is passing in a wire, that state is called as 1. When it is not, it is called as 0. As simple as that. ठीक है? तो सारा computation, every computation which you do on your computer either works with 0 state or 1 state, not both at a time. Right? So the deep study of this field is called as propositional logic. I'm not getting into that, वरना वो अपने आप में एक subject है जो पूरा एक semester पढ़ाया जाता है बीटेक में, but I'm not getting into that. So you just need to know these basics. ठीक है? तो what did we all study till now? We studied what is programming, right? We studied what is programming. We also studied about what language or what does computer understand. We also studied about what is the meaning of 0 and 1 in terms of computer. ठीक है? अब देखिए आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ that is very basics of computer science and that is very basic of programming. ठीक है? How many of you are aware about number systems, different number systems? कितने लोग aware हैं? Please raise your hands. Okay, it's just 7 people who are aware about different number systems. ठीक है? Folks, please keep your hands down. ठीक है? तो मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, रिमेनिंग पीपल हु डोंट नो दिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम्स. अच्छा, मुझे जो लोगों ने हैंड रेज नहीं किया था उनमें से कोई एक बताए, जिन्होंने हैंड रेज किया था प्लीज डोंट स्पीक अप. ठीक है? उनमें से कोई एक बताए हम नॉर्मल लाइफ में कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं? कुछ आइडिया है? जो भी दिमाग में आ रहा है यू कैन स्पीक अबाउट इट. सर गलत तो होगा ज्यादा से ज्यादा, बट यू कैन स्पीक अबाउट इट. नो आइडिया? सो इन जनरल लाइफ और इन डेली लाइफ वी यूज डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन 10. ठीक है? हम डेसिमल नंबर्स का यूज करते हैं, हर चीज हमारी 10 पे बेस्ड होती है. कैसे? जब आप लिखते हैं 23.25 तो 0.25 का क्या मतलब है? कोई बता सकता है मुझे? या चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ठीक है? आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. आज की क्लास थोड़ा सा इज अबाउट टू बी नंबर्स, इट्स अबाउट प्रोग्रामिंग इन जनरल. ठीक है? हाँ PM बताइए क्या डाउट है? वैसे डाउट नहीं है, शायद वो 0.25 रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन आई थिंक. वो ठीक है, मैं उसे डेसिमल नंबर सिस्टम से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके सर. ठीक है? सो मान लीजिए कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ 23. ठीक है? आई एम गिविंग यू अ नंबर. हाउ डू यू रिप्रेजेंट 23? इसको आप कैसे लिखते हो? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 3 ऐसे लिखते हैं. चलिए एक और बड़ा नंबर देते हैं 512. 5 मल्टीप्लाइड बाय बताइए 100. 100 100. प्लस Plus Plus 1 is to 10. 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, राइट? या 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिखते हैं. 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस plus 2 10. किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है? 1 1. 1 sir. 1. कौन बोला 0 होती है? नहीं सर 1 ही होता है. किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, राइट? सो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? दिस इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 0. पावर सिंबल इससे yes sir. Yes, sir. लिख सकता हूँ. सिमिलरली यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 10 रेज टू द पावर 0 बिकॉज दैट इज इवेंचुअली 1, राइट? इसका मतलब क्या है? 1 ही है. ठीक है? तो इनटू 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 रेज टू द पावर 1 लिख सकता हूँ. सिमिलरली हियर एज वेल 10 रेज टू द पावर 1 इज 10 और इसको Yes, क्या sir. लिख सकता हूँ? कैन आई राइट इट एज 10 रेज टू द पावर 2? तो आप देखिए इन डेसिमल नंबर सिस्टम व्हाट हैपेंस इज इन डेसिमल नंबर सिस्टम, थैंक यू. ओके, इन डेसिमल नंबर सिस्टम क्या हुआ है कि एवरीथिंग इज एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ 10. हर चीज को हमने 10 की पावर में एक्सप्रेस किया है. ठीक है? 2 into 10 to the power 0 plus 10 1 into 10 to the power 1 plus 5 into 10 to the power 2 is equals to 512. तो एवरीथिंग इज एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10. पावर ऑफ 10 के मल्टीपल्स में हर चीज एक्सप्रेस की गई है. ठीक है? 10 और 10 से बनता है नंबर डेसिमल. सॉरी, लेट मी रिपीट 10. सो व्हाट इज ऑल द पावर्स अबाउट? ऑल द पावर्स आर ऑफ 10. सारी पावर्स आपकी 10 की हैं एंड 10 से बनता है आपका वर्ड डेसिमल. ठीक है? सो हेंस दिस इज कॉल्ड एज, जो नंबर सिस्टम आप डेली लाइफ में यूज करते हो उसको हम कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम. Decimal number. एंड इसमें जो डिजिट्स यूज की जाती हैं दे आर 0 to 9. कौन से डिजिट्स यूज करते हैं हम? 0 to 9 यूज करते हैं. ठीक है? प्रीटी इजी. मतलब इसमें टोटल 10 डिजिट्स यूज किए जाते हैं. करेक्ट. 0 1 2 3 4 5 6 है. yes sir. अब आते हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम पे जहां पे सिर्फ 2 डिजिट्स हैं which are 0 and 1 और कुछ नहीं. देयर इज नो 2 नो 3 नो 4 नथिंग. कुछ भी ऐसा नहीं है. देयर आर जस्ट 2 डिजिट्स 0 and 1 जो हमारा कंप्यूटर समझता है, राइट? अब देखते हैं कि किसी भी नंबर को इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम तो वो कैसे होगा. इसके लिए मैं कैसे दिखाऊं? आई हैव टू राइट थिंग्स. व्हिच टूल शुड आई यूज? आई एम थिंकिंग अबाउट द टूल. व्हाइट बोर्ड का यूज करें? वी हैव व्हाइट बोर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट. गिव मी अ सेकंड. कहां पे होता है व्हाइट बोर्ड? वेयर इज द व्हाइट बोर्ड? मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? नहीं, नॉट दिस. चलो छोड़ो, आई विल शो इट यू ऑन पेंट ओनली. हाँ, ठीक है. अगर मुझे इसको, ये मैंने भी इसको ऐसे लिखा हुआ है, राइट? अगर मुझे इसको आपको शो करना हो कि ये आया कैसे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. नंबर क्या है मेरा? लेट्स से आई टेक 512 फॉर इंस्टेंस. तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखूंगा 512 बिकॉज मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में. ठीक है? तो आई राइट हियर 512. किससे डिवीजन होगा? कौन सा नंबर सिस्टम है? 10. नंबर सिस्टम है आपका 10 या डेसिमल? डेसिमल में यूज करते हैं 10. 10 से डिवाइड करिए 512 को, क्या रिमाइंडर मिलेगा आपको? 51.2. हाँ Sir. 51. Hello sir. हाँ जी. 81 51.2 sir. 5 अरे यू डोंट हैव टू डिवाइड इट दैट वे. क्वेश्चन अलग Five, करना five. है, करना है. 5 sir. हाँ बताइए रिमाइंडर कितना आएगा? चलिए रिमाइंडर पे फोकस करते हैं अभी. 12 आएगा या और कुछ आएगा?
2 आएगा सर। 2 आएगा 12 आएगा? श्योर हो लीजिए पहले। 2 ठीक है, डिवाइड करके देखो 2 ही आएगा, करेक्ट। तो 2 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। बट डिवाइड, तो चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 10 5 टाइम्स, ठीक है। 10 5 टाइम्स इज 50, राइट? 5 टाइम्स हो गया, एंड देन 2 टाइम्स इज 10। तो 10 into 50, सॉरी 10 टाइम्स, 2 टाइम्स हो जाएगा, इट विल गो 1 टाइम्स, राइट? 51 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर इज 2 हो गया रिमाइंडर, करेक्ट। अभी कितना बचा? 51 बचा। 10 टाइम्स 51 इज 510, ठीक है। तो 2 रिमाइंडर आ गया। तो इधर आई एम राइटिंग द क्वेश्चन एंड इधर आई एम राइटिंग द रिमाइंडर, ठीक है। एंड देन 51 के बाद मेरा क्या बचा यहाँ पे? हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो नाउ? 5 टाइम्स 5 times remainder is 1. 5 टाइम्स, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? 0 0। व्हाट्स द रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या आएगा? -5. -5 थोड़ी आएगा, रिमाइंडर तो 5 ही आएगा। Five. -5 कैसे Positive आएगा? आएगा सर, ये सर। अगर आप इस नंबर को फ्रॉम डाउन टू अप पढ़ें, इज इट द सेम नंबर व्हिच इज रिटन ओवर हियर? यस सर। Yes. So can we say this number is formed by the continuous division by 10 and then taking the remainder in the opposite direction? कह सकते हैं ऐसा, है ना? यस सर। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रही है, ये बताइए। सिंपल मैथ्स डील कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग हाई फाई राइट नाउ, बट स्टिल रेज योर हैंड्स। मेरे कहने का मतलब नहीं है कि आप हैंड्स नहीं रेज करेंगे, इट मे बी कंफ्यूजिंग एट द स्टार्टिंग। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके शो करता हूं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 36 का, ठीक है। 36 हो गया आपका, डिवाइड करिए 10 से, कितना आएगा? क्वेश्चन कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 10 3 times is 36, right? Sorry 30, and then 6 Remainder remainder. 6. Then 10 times 0 is 0, and then the remainder is 3. ठीक है, now read that. इसको ऊपर नीचे से ऊपर पढ़िए, 36 ही तो है। आ रही है बात समझ में, है ना? सो दिस इज योर डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? ये आपका डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किसी भी नंबर को आप बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी इज बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन। नंबर बताइए, कोई भी नंबर बताइए। चलिए आप लोग बहुत बड़ा मत लीजिएगा, बिकॉज इतने नंबर ऑफ डिविजन करने पड़ेंगे फिर मुझे, ठीक है। तो कोई भी नंबर बताइए। 10 ले लो सर, 10। अरे 10 तो ज्यादा ही छोटा हो गया, कुछ तो उससे बड़ा। 428. 428। चलो वील टेक 48, ठीक है। 48 ले लेते हैं, 48 करिए। तो मैंने क्या बताया था, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 10 है, और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 2 है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय 2, करते हैं डिवाइड। 2 टाइम्स 24 है ना, रिमाइंडर 0, 0 ठीक है। 2 12, रिमाइंडर विवेक नोट कर लीजिए, आपका वो Zero. बैकग्राउंड आ रहा है। 2 6, रिमाइंडर 0. 2 3, अगेन रिमाइंडर 0, 0. 2 1, रिमाइंडर 1. 1, and 2 0, remainder is again 1. right? Now read it like this from bottom to top. How will we write it as? लिख लेते हैं इसको, एक सेकंड दीजिएगा। 1 1 0 0 0 0, ये आ गया, ठीक है। चलिए लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या जो हमने कैलकुलेशंस की हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। अभी जब आपने 36 किया था बाई 10, जब हम 36 बाई 10 कर रहे थे, मैं फिर से करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं एक बार छोटा सा। 36 बाई 10, तो ऐसे लिख रहे थे, 36 से डिवाइड किया 10 को, क्या आया था? 3, एंड द रिमाइंडर इज 6, राइट? रिमाइंडर क्या था? 6 था। देन 10 into 0 एंड देन रिमाइंडर क्या था? 3 था। तो हम इसको ऐसे लिख रहे थे ना कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, या यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 0, है ना? 36 को आप क्या लिखोगे? फोक्स प्लीज पे अटेंशन, दिस कैन बी कंफ्यूजिंग। 36 को हम क्या लिखेंगे? 30 प्लस 6 लिख सकते हैं, कैन वी राइट इट एज 30 प्लस 6? और 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 into 10 लिख सकता हूँ, और प्लस Yes, sir. 6। अच्छा, 6 को मैं 6 into 1 लिख सकता हूँ, 6 into 1 is 6 only, right? और 1 क्या है? Yes, 1 तो 10 to the power 0 ही है ना एट द एंड। तो कैन आई से दिस इज 3 into 10 to the power 1 plus 6 into 10 to the power 0? कह सकता हूँ मैं? Yes, sir. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? मैथ्स कर रहा हूँ, देखिए मैं सिंपल मैथ्स कर रहा हूँ, क्लास 4 की मैथमेटिक्स कर रहा हूँ मैं। सबको ये चीज समझ में आई जो ये लिखा मैंने? ये चीज उसको छोड़ दीजिए अभी 2 वाले को, ये समझ में आया सबको? ये क्या लिखा है? 36 कैन बी रिटन एज 3 into 10 to the power 1 plus 6 into 10 to the power 0, ठीक है। मैं ये फील भी करा सकता हूं, बट अगर मैं फील कराने में गया ना, इफ आई गो इनटू मेकिंग यू फील दिस थिंग, तो और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू कि ऐसा क्यों है, ठीक है। बट ठीक है, 3 into 10 to the power 1 is 30 plus 6 into 10 to the power 0 which is 1 6, 30 plus 6 is 36, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, राइट? अब सेम काम हमें करना है पर यहाँ। तो हाँ आदर्श बताइए। सर एक बार इसमें दिखाइए पीछे करिए। सर ये जो 36 लिखा है वो जो 10 से डिवाइड कर रहा है, हाँ। तो पहली लाइन तो समझ में आ रही है कि आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 6 रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन सर ये जो सेकंड लाइन लिखा है 0 और 3, सर एक बार इसको क्लियर करिए। इसका मतलब कुछ नहीं है, अगर आपको 3 को डिवाइड करना है 10 से, तो डिवाइड आप कर ही नहीं सकते हो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्वेश्चन आया 0, और उसके बाद रिमाइंडर बचा 3। आप सीधे भी बोल सकते हो कि यही मतलब रिमाइंडर है। ये मान लेते हैं ना इस तरह से। क्या मान लेते हैं? अरे देखो मैं आपको डिवीजन करके दिखाता हूँ। ये आपका 36, ठीक है। ये है 10, 10 times 3 is 30, 30 हो गया आपका, 6 ठीक रिमाइंडर है। आया। हाँ, रिमाइंडर आया कितना? 6, हाँ। है ना? अब 6 डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, ऐसा मान लीजिए आप कि अब यहाँ डिवाइड तो हुआ नहीं, ठीक है। तो या तो आप इसको बोल दो कि यही फाइनल रिमाइंडर है, मतलब नॉर्मल डिवीजन में आप इसी को रिमाइंडर बोलते हो। कंप्यूटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हम बोल देते हैं इस चीज को कि ये 10 0 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ और रिमाइंडर बचा 3। ओके, और सर ऐसा भी कुछ है क्या कि ये नीचे वाले रिमाइंडर और ऊपर वाले रिमाइंडर को जोड़ने पे 36 आना चाहिए?
नहीं जोड़ने पे नहीं, इस तरह से कि जब आप, क्योंकि आप किससे डिवाइड कर रहे हो, आपका डिवीजन हो रहा है कंटिन्यूअसली 10 से, आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो जब Yes, 10 की पावर, ये देखो अब यहाँ पे आप नीचे से ऊपर बढ़ोगे, ठीक है, तो 10 की पावर 1, मतलब यहाँ से देखो इसको ऐसे अलॉट करते हैं, 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 4 एंड 5। सिमिलरली 10 वाले केस में भी, यहाँ तो 2 वाला केस है, बट सिमिलरली 10 वाले केस में भी दिस इज पावर 0 एंड दिस इज पावर 1। तो जब 10 को पावर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें 6 ऐड कर दें, सिमिलरली 10 को पावर 1 से मल्टीप्लाई की पावर 1 हो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उनका जो एडिशन है वो 36 होना चाहिए। Okay, that's clear, sir. Thank you so much. Sir, means sir, ये 10 to the power 0 represent as 1 sir, यस यस and 10 to the power 1 represent as 10. यस So means sir कि अगर वो ऊपर 0 दिखाए तो अपन एज अ 1 कंसीडर करेंगे, 10 to the power 1 2 3 जो भी रहेगा उससे जो भी पर्टिकुलर नंबर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं बताता हूँ, 2 में आ रहे हैं ना, 2 वाले में ज्यादा पावर जनरेट होंगी, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा। हेलो सर। ये इरेजर का साइज पता नहीं, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, पता नहीं इरेजर, आई एम नॉट गुड एट दिस। ठीक है, हाँ बताइए। सर 3 into 10 to the power 1, तो सर यहाँ पे क्या सर 10 to the power 0 नहीं लग सकता सर, मैं टेक्निकली तो यही होना चाहिए क्योंकि ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है और वो वाला सर नहीं होगा सर, आप मतलब उसको रिलेट मत करो, मैं इसलिए पता है रिलेट वाली चीज में जान ही रहा हूँ, मैं रिलेट कर सकता हूँ, बट रिलेट करने में पता है क्या होगा, ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा रिलेशन दिखा सकता हूँ आपको, ये इस प्रोसेस को मॉडलाइजेशन कहते हैं, ये मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखा सकता हूँ, बट देन द थिंग इज कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने सिंपल रखा है इसको कि आप डिवाइड करना शुरू करो, जैसे वहां हमने 10 से किया था, यहाँ 2 से कर रहे हैं, डिवाइड करो, जो रिमाइंडर है वो आप लिखते चले जाओ, बस इस पे फोकस करना है। ओके सर। सर और कंट्रोल प्लस प्लस दबाइएगा तो डबल का साइज बड़ा हो जाएगा। अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा Yes, है, sir. हो जाएगा सर, हो जाएगा। पेंट में होता है सर कंट्रोल प्लस। अरे आपके में हो रहा होगा ना, ये मैक में नहीं होता है। ओके ओके। ओके ओके ओके। तो ठीक है, तो जो प्रोसेस हमने 10 के लिए रिपीट किया था वही सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे किसके लिए, अब 2 के लिए। तो ये इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, कौन बताएगा। दिस विल बी रिटन एज 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर, कितनी पावर है 1 5 5 राइट, यहाँ देखिए क्या नंबर लिखा हुआ है 5, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई सॉरी 1, यहाँ नंबर क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर, यहाँ कितना नंबर है 4 राइट। सिमिलरली प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 into the power 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 into the power, बताइए 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 into the power 1 एंड लास्ट में 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 into the power 0। करिए जरा ऐड, क्या रिजल्ट आता है। 2 to the power 5 होता है 32, 2 to the power 4 होता है 16, ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा याद रख लीजिएगा, 2 की पावर 6 7 तक याद रख लीजिए, ठीक है। 2 to the power 5 होता है 32, 2 to the power 4 होता है 16, कैसे आता है 2 to the power 5 का मतलब क्या हुआ 2 into 2 into 2 into 2 5 टाइम्स, 2 to the power 4 क्या हुआ 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 है ना 4 टाइम्स, तो ये होता है 32, ये होता है 16, ठीक है, 32 प्लस 16, चलो जो भी आएगा बाद में देखेंगे। 0 से किसी का भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो तो 0 ही हो जाएगा ना, 48 is answer. ये सब 0 हो गया ना, दिस इज ऑल 0, बचा क्या 32 प्लस 16, द आंसर इज 48। तो यही है 48 का रिप्रेजेंटेशन बट इन बाइनरी फॉर्मेट। आई बात समझ में, है ना। तो 48 is represented as 11 4 times 0 in binary language। तो आपका कंप्यूटर 48 नहीं समझेगा, आपका कंप्यूटर इसको ये समझेगा, राइट। आ रही है बात समझ में सबको। एक और करके दिखा देता हूँ, ठीक है, लास्ट है एक, ये भी करके दिखा देता हूँ। लेट्स टेक द नंबर 63, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर ले लो। बहुत डिवीजन करवाओगे आप मुझसे, मुझे दिक्कत कोई नहीं है, मुझे बस डिवीजन बढ़ जाएंगे, चलो 163 ले लेते हैं, ठीक है। सर 2 चलिए डिजिट रखो सर, अंडरस्टैंड में मतलब आसानी होता है सर। कोई बात नहीं, कर लेते हैं 3 डिजिट का। 3 डिजिट भी वैसे ही होगा 2 डिजिट से, देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 डिजिट ले आओ, 1630194 कुछ भी ले आओ, मुझे तो डिवीजन ही करना है ना, मेरे लिए डिवीजन बढ़ेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैनुअल वर्क करना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। चलिए 63 लेते हैं अभी के लिए, 2 3 एंड 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, राइट। फिर से, और यहाँ से आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत सारे कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा यहाँ से भी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा ये चीज ध्यान देके पढ़िएगा, इसको हवा में मत समझिएगा, ठीक है। फिर कितना जाएगा 15 और रिमाइंडर आएगा 1, राइट। फिर कितना जाएगा 7 और रिमाइंडर आएगा 1, फिर 3 6 रिमाइंडर 1, देन 2 into कितना जाएगा फिर 1, रिमाइंडर एज 1 एंड देन 0 एंड 1, सारे 1 आए, इस बार 0 आए नहीं, स्ट्रेंज, ठीक है। क्या ही कर सकते हैं। तो अब इसको हम रीड करते हैं नीचे से ऊपर, तो ये कितनी हो गई पावर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 एंड पावर 5, है ना। और इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। तो 1 into 2 to the power 5, 1 into 2 to the power 4, 1 into 2 to the power 3, 1 into 2 to the power 2, 1 into 2 to the power 1 और 1 into 2 to the power 0, है ना। यही हुआ, ये इसका यही मतलब हुआ ना। लिख देता हूँ चलिए आपके लिए, this is 1 multiplied by 2 to the power 0, right. This is 1 multiplied by 2 to the power 1, this is 1 multiplied by 2 to the power 2, 1 multiplied by 2 to the power 3, 1 multiplied by 2 to the power, बताइए 4 सर 4 एंड 1 multiplied by 2 to the power 5। अब इन सबकी वैल्यूज क्या आएंगी, करिए कैलकुलेट। 2 to the power 0 कितना होगा 1, किसी भी नंबर की, किसी भी पॉजिटिव नंबर की व्हेन रेज्ड द पावर 0 1 ही होता है। तो बी इट 1 की पावर 1 सॉरी 1 की पावर 0 2 की पावर 0 3 की पावर 0 4 की पावर 0, किसी भी नंबर को आप अगर पावर 0 पे रेज करते हो तो इसका रिजल्ट होता है 1। तो 2 to the power 0 is 1, this is 1 into 1, this is 1, ठीक है। अगला देखिए 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 1 का क्या मतलब हुआ 2 multiplied 1 times which is 2 only, 1 into 2 is 2, similarly 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब is 8
2 to the power 4 is 16 and 2 to the power 5 is 32. करिए एडिशन जरा, करिए एडिशन एक बार. 32 plus 16 is 48, 48 and 8 is 56, 56 plus 4 is 60, 62 and 63. यही है. तो if you want to represent 63 in 2 to the powers या in binary numbers, तो आप कैसे लिखेंगे उसको? नीचे से ही लिखना स्टार्ट किया जाता है हमेशा, ठीक है? 1 1 1 1 1 1. This is your 63. ये है आपका 63 in binary form. तो इसको ऐसे लिखा जाता है 1 1 1 6 times in binary form. Binary form मतलब बेस क्या है मेरा? 2 is same as 63. और 63 का बेस क्या है? 10. करेक्ट. तो जो डेसिमल में जिसको आप 63 कहते हो, बाइनरी में 1 1 1 1 1 1 है, वही 63. मेक सेंस? आया सबको समझ में? Yes, sir. और अगर आपको, तो ये है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, कि आपको डेसिमल नंबर गिवन है और आपने उसे बाइनरी में कन्वर्ट किया, ठीक है? अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल देखना है, जैसे कि आपको नंबर दिया गया लेट्स से 11001, आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, इसको डेसिमल में बताइए, ये कौन सा नंबर लिखा है? ये तो बाइनरी है. इफ आई एम सेइंग दिस इज बाइनरी, ठीक है? बाइनरी अगर होगा तो वहां पे लिखा होगा कि इसका बेस 2 है, ठीक है? सो दिस इज बाइनरी. वरना हो तो ये डेसिमल में भी सकता ही है ना. इन दैट केस यू विल कॉल इट 11001. डेसिमल में 11001 है, पर बाइनरी में 11001 नहीं है. इट इज सिंपली 11001. अगर कोई पूछे ये डेसिमल में कितना है, तो आप क्या करोगे? वही सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ किया ना, उसी को उल्टा कर देंगे हम. दिस इज व्हाट 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 1, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 3 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 4. तो देखिए जीरोस तो मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएंगे. तो हमारा ध्यान सिर्फ इन तीन वंस पे होना चाहिए, है ना? बिकॉज 0 से एडिशन में कोई कुछ मिलना ही नहीं है, वो 0 ही हो जाएगा. तो 2 टू द पावर 4 कितना है? 16 प्लस 2 टू द पावर 3 कितना है? 8 और 2 टू द पावर 0 कितना है? 1. कितना आ गया? 25. तो ये एक्चुअली कुछ नहीं है, 25 का रिप्रेजेंटेशन है इन बाइनरी. ये 25 का ही बाइनरी फॉर्म लिखा हुआ है. 25 इन डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस 10 नीचे लिख देते हैं, ठीक है? 25 बेस 10 इज सेम एज 11001 इन बाइनरी. ये बात सब लोगों को समझ में आई जो अभी हमने डिस्कस किया? ठीक है, आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें इस चीज पे, क्योंकि इसके बाद मुझे इससे कंक्लूजन्स ड्रॉ कराने हैं आपको, और वो कंक्लूजन्स आपको आगे चल के ऑपरेटर्स में काम आएंगे, ठीक है? आप जब जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे प्रॉब्ली 2-3 क्लासेस के बाद, तो वहां आपको पता चलेगा कि इन चीजों का क्या यूज है. ये मैं ऐसे ही कुछ भी आपको हवा में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मत सोचिएगा मैं कुछ भी पढ़ाया जा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आपको 2 नंबर्स दे रहा हूँ, दोनों का फटाफट से आप लोग मुझे बाइनरी निकाल के दीजिए. हाँ जी आदर्श. सर एक बार स्क्रीन दिखाएंगे. हाँ दिखाएंगे बिल्कुल. सर ये जो बाइनरी नंबर दिया है 11001, सर इसके ऊपर जो हम पावर लगा रहे हैं 0 1 2 3 4, हाँ. सर इसमें हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं सर 1 की पावर 1 जो है इसके ऊपर 1 फिर 2, क्योंकि सर वो 2 का ही सर डबल होगा हर बार. तो 2 ऐसे का भी डबल नहीं होगा, 2 की पावर होगी. हाँ सॉरी 2 की पावर ही होगी सर, हमेशा बढ़ती जाएगी. तो सर क्या हम इसको ऐसे लिख के भी ऐड कर सकते हैं ना ऊपर? ये प्रोसेस पूरा करना जरूरी है? नहीं, आप डायरेक्ट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए पूरा बताया है कि होता तो यही, आप डायरेक्ट करोगे तो भी आप मेंटली यही कर रहे होगे जो मैंने लिखा है. यस सर. है ना? मेंटली आप वही कर रहे होगे, आपके ऊपर है, व्हाटएवर सूट्स यू. ठीक, थैंक यू सर. चलिए, तो जो मैं आपको नंबर्स दे रहा हूँ, द फर्स्ट नंबर इज 401 401. 401 को कन्वर्ट करिए चार्ट यार, एक तो ये इसकी वजह से चार्ट चली जाती है, ठीक है? आई एम राइटिंग इट इन द चार्ट. फर्स्ट नंबर इज 401, इसको कन्वर्ट करिए बाइनरी में, ठीक है? इसका मुझे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बताइए. एंड सेकंड नंबर जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इसका मुझे डेसिमल कन्वर्जन चाहिए. फर्स्ट नंबर इज इन डेसिमल नंबर सिस्टम और सेकंड नंबर इज इन बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है? ये बताइए मुझे. सर पहले का बाइनरी करना है और दूसरे का डेसिमल. हाँ जी. पाँच 7 मिनट दे रहा हूँ, 8:25 तक का टाइम ले लीजिए, उसके बाद मैं पूछता हूँ किसने क्या क्या कैलकुलेट किया. ज्यादा बड़ा काम है नहीं, डिविजन है सिंपली. Sir, decimal to binary ना? फर्स्ट वाले को आपको डेसिमल टू बाइनरी करना है, सेकंड वाला मैंने आपको बाइनरी नंबर दिया है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. एंड कोई भी रिजल्ट शेयर ना करे आपस में, ना ही चैट में लिखे, अपना अपना करके अपने पास रख लीजिए.
हाउ मेनी ऑफ यू आर डन? कितने लोगों का हो गया? प्लीज रेज योर हैंड्स एक बार. आउट ऑफ 27 पीपल प्लीज रेज हैंड्स. कितने लोगों का हो गया? भाई ये तो मैथ्स है सिंपल, इसमें मैं क्या ही बोलूँ. दिस इज सिंपल मैथ्स. यू विल बी जज्ड ऑन मैथ्स स्किल्स हियर. मैं आपको कंप्यूटर साइंस की या प्रोग्रामिंग की स्किल्स पे नहीं जज कर रहा हूँ यहाँ. तो सिंपल मैथ्स से करिए कैलकुलेशंस, रिजल्ट लाइए. अच्छा कितने लोगों का फर्स्ट वाला हो गया है? वो 401 वाला, वो लोग प्लीज रेज हैंड्स. सिर्फ फर्स्ट वाला भी हैंड रेज कर सकते हैं. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 8-10 लोग जो बाकी बच रहे हैं. है सिर्फ 20 लोगों का हुआ. अजीत, मालू, सचिन, संतोष, फैजान, स्वप्निल, तालिब, क्या चल रहा है? नहीं हो रहा है सर. बाकी लोगों का क्या चल रहा है? Sir, actually, I'm not feeling well. So Okay. that's why I'm not doing That's fine. That's fine. it. Sorry, sir. No problem. That's fine. सचिन आप बताइए. संतोष, स्वप्निल. चलो लेट मी डू इट नाउ. मैं करके दिखाता हूँ. क्या नंबर दिया था मैंने आपको? 401 है ना? सिंपल सा है. 401 लिखो. स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय 2. ठीक है. क्या आएगा? 200. 2 into 200 is 400 राइट. रिमाइंडर क्या बचेगा? 1. 100. रिमाइंडर क्या बचेगा? 0. फिर 50. रिमाइंडर क्या बचेगा? 0. 25. रिमाइंडर 0. 12. रिमाइंडर 1. 6. 0. 3. 0. 1 or 0? Zero. 0. Then 2 1 times 2 is 2. Remainder is 1. And then again 0 and 1. One. करिए रीडर्स को, यही तो करना था और क्या करना था इसमें? कुछ करना ही नहीं था. इट्स 11 00 1 000 1. ये है इसका बाइनरी फॉर्म. वेरीफाई कर लें. ये क्या है? 2 to the power 0 है. ठीक है. ये क्या है? 2 to the power 1 है, 2 है, 3 है. ये क्या है? 4 है, 5 6 7 and 8. 0 से मतलब नहीं, वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाने हैं. 2 to the power 8 कितना होता है? 5 होता है 32. 32 के बाद आएगा 6 64 128 256 आएगा. तो ये है हमारा 256. 7 कितना होता है? 128 है ना. ये हो गया हमारा 128. 4 कितना होगा? 16. Yes, sir. 64. 464 होगा. 416 होगा. 64, sir. 64 तो 6 है. और ये कितना होगा? 1. ठीक है. ऐड करिए. कितना आएगा? 256 प्लस 128 256 प्लस 100 356 376 एंड 384. 384 और 16 400 और 1 कितना हो गया? 401 हो गया ना. तो द करेक्ट आंसर टू दिस इज 1100010001. ये आया सब लोगों का? जितने लोगों के भी हैंड्स रेज्ड हैं यही आ रहा Yes, sir. था. Yes, sir. Yes, sir. 1100010001. दिस इज द करेक्ट आंसर. ये सर यही आ रहा है. ठीक है. और वो नंबर का क्या है आपका बाइनरी जो मैंने भेजा था? देखें जरा क्या भेजा था मैंने. सर Sorry, 250 आ रहा है. Yes, 250 आ रहा है. 250 आ नहीं सकता. 249. 249. ओह अच्छा अच्छा 249. 249. हाँ सबका 249. 249 आ रहा है. ठीक है. मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ. आई एम अज्यूमिंग कि आप सब लोगों का सही होगा. ठीक है. ज्यादातर लोग बोल रहे हैं तो सही ही होगा. ठीक है. एक इंसान अलग हो सकता है, सब नहीं गलत हो सकता है. ठीक है. तो 249 इज द आंसर. अब मैं आपको एक क्विक कंक्लूजन पे लाता हूँ. बहुत ही क्विक कंक्लूजन है. उसके बाद मैं प्रोपोजिशनल लॉजिक स्टार्ट करूंगा. ठीक है. बहुत ही जल्दी से करके दिखाता हूँ मैं आपको फटाफट से. एक तो यहाँ लिखने की बड़ी प्रॉब्लम है पेंट में, वरना मैं जल्दी से कर देता हूँ. चलिए ठीक है. मैं एक एक करके आप लोगों को फटाफट से छोटे छोटे नंबर्स दूंगा. ठीक है. आप लोग मुझे कन्वर्ट करके बताइए. 20 का बाइनरी बताइए मुझे फटाक से. कौन बताएगा? प्रियम 20 का बाइनरी निकालिए. जल्दी से करिए. ठीक है. मंतशा Okay, sir. या मंतशा कैन यू गिव मी फॉर 23. फैजान 17. ठीक है. एंड अजीत 12. और किसको देते हैं? आतिफ कैन यू डू इट फॉर जस्ट Yeah, sir. एक सेकंड. 67. आतिफ 67. हाँ मंतशा आपने 23 का निकाला. Yes, sir. कितना 1 है? हाँ. 100. Oh, sorry. 101 11. ठीक है. 17 मैंने किसको सर दिया मेरा था? भी आ गया सर 20 का. हाँ, 10100. 10. 100. ठीक है. ठीक है. करेक्ट. सही है. परफेक्ट. 17 किसको दिया था? सर नहीं हो रहा है. Sir, 10001. ये? So 17. ठीक है. करेक्ट. 12 किसे दिया था मैंने? हाँ सर मैंने किया सर 1100 आ रहा है. हाँ राइट प्लस 4. ठीक है. 67 आतिफ आपको दिया था. Yes, sir. वो आपका 67. Yes, sir. 11 4 times 0 and 1. 4 times 0 1 5 4 0 4. ठीक है. 0 तो 4 हो जाएगा 5 32. पक्का यही आएगा? एक सेकंड में कुछ गलत कर रहा हूँ मैं भी. 0 1 2 3 4 5. 67 का बाइनरी आता है 10000 हाँ वही मुझे भी लग रहा था. कुछ तो ऑफ हो रहा है. ठीक है. फाइन. फैजान क्या हो रहा है? आप समझ रहे नहीं क्या बोल रहे हो सर आप. कैलकुलेशन ही नहीं हो रही. सिंपल कैलकुलेट करो बस सर. आप समझ रहे नहीं. इजी है. कुछ नहीं करना आपको. डिवीजन ही नहीं करने आ रहा है मेरे को सर प्रॉपर्ली. 401 में से 200 कैसे निकला वो भी नहीं समझा सर. कैसे आप 200 100 कर दोगे? देखो कोई नंबर लेता है 39 लेता है. ठीक है. 2 से अगर आप 39 को डिवाइड करेंगे, 2 से करिए डिवाइड जरा 39 को. कैसे करेंगे? तो 1 times 2 is 1 सॉरी 2 है ना. 2 1 2 कितना होगा? 2. कितना बचा? 1.
अगर इसको मैं नॉर्मली डिवाइड करूँ 39 लेते चलिए 39 को 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितने टाइम जाएगा बताइए फैजान आप ही बताइए। क्या बोले सर? टू टू वन से टू करेंगे। करेक्ट 2 आ गया कितना आएगा यहाँ पे? कहाँ पे सर? हाँ स्क्रीन ऑफ है सर आपके। हाँ सर अच्छा स्क्रीन ऑफ है ओके ठीक है सॉरी फॉर दैट। हाँ 39 2 ठीक है तो अब मैं डिवीजन कर रहा हूँ बताइए फैजान 2 को मैंने 1 टाइम्स लिखा तो कितना लिख दूँ मैं यहाँ पे? 2 आएगा। 2 आएगा जी सर। 2 आ गया ठीक है और एक सेकेंड 39 को आप 2 से डिवाइड कैसे करोगे? 13 टाइम्स जाएगा कितना टाइम जाएगा कैलकुलेट करके देखो एक बार 18 टाइम्स जाएगा ना 18 टाइम्स जाएगा कितना जाएगा 19 19 टाइम्स जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा ना फैजान ऐसे ही तो करते हैं डिवीजन हम 2 टाइम्स 19 इज 38 है ना जी सर। एंड रिमाइंडर कितना बचा 1 1 तो बचा रिमाइंडर 39 माइनस 38 कितना आएगा 1 अब यहाँ बचा। जब मैं हाँ बताइए 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 401 को करो तो एक बार 2 से सर। चलो 401 को कर दो 401 ठीक है कितना आ जाएगा बताइए आप खुद बताइए 2 1 से 2 होगा पहले जिसका। करेक्ट 2 2 आ जाएगा ना तो हाँ 2 2 से 4 हो जाएगा और फिर 0 है। 0 है तो 0 लगा देंगे 0 हो जाएगा और 1 डिवाइड होगा नहीं 2 से तो उसके लिए भी हम 0 लगा देंगे ना अच्छा ये रूल है कि सर मालूम नहीं होगा। डिवीजन डिवीजन नॉर्मल डिवीजन कर रहे हैं आपने डिवीजन पढ़ा होगा ना मतलब पढ़ा उसे याद नहीं आ रहा है। चलिए नॉर्मल रूल है ठीक है सो तो 2 टाइम्स 200 इज 400 ठीक है नॉर्मल डिवीजन कर रहे हैं चलिए मैं डिवीजन करके दिखाता हूँ आपको और डिटेल में बता देता हूँ अगर मेरे पास पेन पेपर होता ना तो काफी इजी हो जाता बट कोई नहीं 719 लेते हैं देखिए डिवीजन का रूल क्या है डिवीजन का रूल ये है कि अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा ठीक है तो सबसे पहले 7 को डिवाइड करना है ठीक है कितनी बार जाएगा 7 3 2 3 6। करेक्ट 3 6 ठीक है 2 3 6 बट 7 में से कितना बच गया 1 बच गया ना तो 1 यहाँ पे जी। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा है ना तो 11 हो गया तो 2 कितनी बार 11 में जाएगा 2 5 से 10। 5 10 ठीक है कितना तो यहाँ पे क्या हो गया 10 तो बेसिकली 10 का हम 0 लिख देंगे और फिर से 1 कैरी हो जाएगा 19 कितनी बार जाएगा 2 9 से 18। 19 2 9 18 करेक्ट ठीक है यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 है ना सॉरी ये क्या हो जाएगा 718 हो जाएगा ना 718 चला गया हमारा ठीक है देखिए ये मैं पेन पेपर बताना इजी इसको ऐसे कैलकुलेट करना मेरे लिए भी मतलब डिस्प्ले करना पता नहीं मेरे लिए टफ क्यों है डिवीजन जैसी चीज नहीं समझा पा रहा हूँ आपको पेन पेपर यार लेट मी ट्राई लिखा तो सही है मैंने सर वैसे मेरे को भी समझ में आ रहा है 2 से इतना कम गया बट एक्चुअली उसको कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना तो प्रॉब्लम आ रही है। कौन सा मैं रूल से समझ क्या रहा हूँ है? मुझे सिर्फ आपको पता है मैं ये चीजें मतलब मैं बताऊँ मुझे प्रॉब्लम क्यों आ रही है क्योंकि मैं ये मतलब डेली का ये मतलब डेली का तो नहीं पर मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करता हूँ डेली तो मैं इतना ज्यादा मेंटली करता हूँ ना कि जो पूरा प्रोसेस पढ़ाया जाता है ना मतलब वो प्रोसेस अब उसको दिखाना माइंड कर वही रहा है बट उस प्रोसेस को शो करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि मैं इतना ज्यादा मतलब मैं कैलकुलेशंस में मैं सच बताऊं मैं कैलकुलेशंस बहुत फास्ट करता हूँ ठीक है तो मतलब उस कैलकुलेशन को पेपर पे उतारना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कैसे समझाऊं मैं चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं एक कोशिश और करके देखता हूँ 49 लेते हैं सिंपल ठीक है 2 से डिवीजन ठीक है 49 तो 49 में हमें पता है 48 डिवाइड होगा 2 से है ना ऐसे समझ के देखते हैं थोड़ा उल्टी उंगली पकड़ते हैं कि 49 तो डिवाइड नहीं हो सकता पर 48 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 की इजीनेस यही है कि 50 डिवाइड हो जाएगा 48 डिवाइड हो जाएगा दोनों इवन नंबर्स हैं पर 49 नहीं होगा तो 48 आएगा यहाँ पे फॉर श्योर ठीक है 48 लाने के लिए ठीक है 48 लाने के लिए कितनी बार जाएगा ये 24 टाइम्स जाएगा ना है ना 2 टाइम्स 2 इज 4 एंड 2 टाइम्स 4 इज 8 24 जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा इस प्रोसेस में 1 49 माइनस 48 इज 1 ठीक है अब आप क्या करोगे अब आप अगला नंबर पकड़ोगे विच इज 24 फिर से 2 से डिवाइड करेंगे सॉरी ठीक है तो कितना आएगा 2 से पूरा पूरा चला जाएगा 24 और यहाँ रिमाइंडर आएगा 12 सॉरी क्वोशिएंट आएगा 12 और रिमाइंडर आएगा 0 ठीक है रिमाइंडर है 0 फिर से हम पकड़ेंगे इस 12 को तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमें 0 ना मिल जाए क्वोशिएंट 0 ना मिल जाए या 1 ना मिल जाए ठीक है तो 2 को 12 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 6 टाइम्स 12 ठीक है पूरा हो गया ये खत्म और ये कितना आ गया यहाँ पे 0 देन फिर से 6 को डिवाइड करेंगे 6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3 6 एंड रिमाइंडर फिर से 0 देन 3 को डिवाइड करेंगे 1 2 1 टाइम्स 2 इज 2 एंड रिमाइंडर इस केस में मिलेगा 1 यस सर। ठीक है अब आप यहीं रुक जाइए और इसको मैं राइट टू लेफ्ट गया हूँ इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ना शुरू करिए तो ये क्या मिला मुझे 1 0 0 0 1 ठीक है 1 0 0 1 ये आपका इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि अगर आप पावर्स में आप करके देखोगे इसको तो ये 2 की पावर 0 है सॉरी हाँ ये 2 की पावर 0 है तो ये 1 हो गया देन ये 2 की पावर 1 है पर 0 से मल्टीप्लाई कोई सेंस नहीं है उसका सिमिलरली यहाँ पे भी इसका कोई सेंस नहीं है तो 0 1 2 3 एंड 4 ठीक है कुछ गलती करी क्या मैंने एक सेकंड सर एक बार और 2 से सर डिवाइड कर दीजिए सर अच्छा हाँ एक बार और तो 2 से डिवाइड होगा बिकॉज रिमाइंडर 0 नहीं मिला हमें लास्ट में है ना जस्ट गिव मी अ सेकंड Yes, तो sir. 2 से अगर एक बार और डिवाइड होगा तो क्या होगा फिर लास्ट में रिमाइंडर 1 मिलेगा ना फिर से तो एक 1 और आ जाएगा यहाँ पे ठीक है तो देखिए क्या हो जाएगा ये तो 1 है ही है ये 0 0 0 और पावर्स लिखते चलिए पावर्स लिखते चलते हैं 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 एंड पावर 5 करिए जरा ऐड 2 की पावर 5 कितनी होगी फैजान आप बताइए जी सर। 2 की पावर 5 कितनी होगी करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है 32 32 2 की पावर 4 कितनी होगी 16
16 करेक्ट। तो ये हो गया मेरा, ये वाला 1 हो गया मेरा 32, ये वाला 1 हो गया मेरा 16, ये तो जीरोस है ही है तो इनका कोई सेंस ही नहीं है, और ये वाला लास्ट वाला 1 हो गया 1, तो 32 + 16 + 1 कितना हुआ? 32 49 + 49, उसी को तो कन्वर्ट कर रहे थे हम। सर वो रूल्स भी समझे ना आपने, जो 401 से करे 0 को ऊपर रख दिए थे। इसमें 0 को ऊपर रख दिया था। जैसे चलो आपने देखिए, अब मैं आपको इजी तरीका दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया रूल्स नॉर्मल मेरे को समझा नहीं सर उसका। जैसे 401 को आपने 2 से डिवाइड करे और आपने 401 कहा कैसे लेते हैं? ठीक है, 401 ही ले लेते हैं फिर से। 401 2 से डिवाइड करिए इसको, जो क्वोशिएंट आए उसको नीचे रखते जाइए और जो रिमाइंडर आए उसको साइड में रखते जाइए। ठीक है, 2 को अगर आप 401 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट कितना मिलेगा आपको? कितनी बार 2 मल्टीप्लाई होके हमें 401 के क्लोज में पहुंच जाए? 2 2 4 200 आएगा ना? फैजान सर 2 × 2 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा सर। 2 0 से 0 201 क्या है वो? कहाँ 201 लिखा मैंने? फर्स्ट वाली वैल्यू आई 2 to the 4, सेकंड वैल्यू 0, 2 0 से 0 करेक्ट, और और 1 2 कैसे जीरो आया फिर से सर? 0 कहाँ बनाया? 1 आया कहाँ? 1 अभी लिखा ही नहीं मतलब 1 से अपन ने मल्टीप्लाई करे 2 को, 2 0 1 जा क्या है वो? मैंने। कहाँ है 1? मुझे थर्ड दिख ही नहीं डिजिट, 200 का थर्ड डिजिट सर। रहा। 200 का थर्ड जैसे 0 ही तो है, 1 हाँ कहाँ है? कैसे वैसे मल्टीप्लाई कैसे होगा सर वो 1 से? और देखिए, आप जब 401 को डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, आप जब 401 को डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, करो आप डिवाइड, तो 2 2 जा 4 है ना, यस सर 2 0 जा 0। 2 0 सर से 0 1 तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता 2 से, तो जो नहीं नंबर हो डिवाइड पाएगा। हो नहीं सकता उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? 0 लिखते हैं ना। ये रूल याद है डिवीजन का? जो हाँ नंबर सर डिवाइड नहीं हो सकता उसके लिए हम 0 लिख देते हैं, और वो नंबर और उसकी जगह यहाँ पे भी 0 आ जाता है। तो अब ये ऐसे आ गया और रिमाइंडर बचा 1, 401 ओके माइनस 1। तो समझ इस तरह गया से आपका क्वेश्चन बना 200। जी सर। यही रूल्स नहीं मालूम थे सर, थोड़ा बहुत वही कंफ्यूजन हुआ। हाँ, तो 2 × 200 is 400, रिमाइंडर बचा 1। अब यहाँ अगला स्टेप बताइए फैजान 100 क्या आएगा 100 आएगा सर। करेक्ट? 100 रिमाइंडर 1 0, कुछ बचेगा ही नहीं ना, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 200। हाँ ये सर पूरी तरह से डिवाइड हो गया। नेक्स्ट हाँ 50, 50 ठीक है, रिमाइंडर 0, जी सर देन 25 रिमाइंडर अगेन 0, जी सर। फिर अगला 1 सर रिमाइंडर 14 क्वेश्चन 1 14 क्वेश्चन रिमाइंडर 1 है 12 12 14 नहीं 12 है, 2 1 2 2 4 हाँ सर। फिर 6 रिमाइंडर 0, 3 रिमाइंडर 0। सर आपकी स्क्रीन नहीं सो रही है, नो सर दिख रहा है। देख रही नहीं है सर दिख रहा है सर। नेटवर्क इशू। देन 2 1s are 2 and remainder 1, and then again 2 zeros are 0 and again remainder 1। जब तक क्वेश्चन 0 ना हो जाए तब तक डिवीजन करते रहिए। ये है आपका 410 का रिप्रेजेंटेशन, 401 का रिप्रेजेंटेशन। सर समझ गया। चलिए अब वापस आते हैं। हाँ, तो ये कुछ ऑड नंबर्स लिखे हैं मैंने। चलिए 2-3 ऑड नंबर्स और ऐड करता हूँ मैं, 2-3 नंबर्स और ऐड करता हूँ। ये कहाँ से आ गया? कौन सा करेगा टेक्स्ट? ठीक है, तो आप लोग मुझे एक बार, फैजान चलिए जल्दी से मुझे 7 का बताइए। और कौन है? फैजान आपको 7 का बताना है। विवेक आपके ऊपर है 12। हाँ सर 12 तो चलिए हमने कर लिया, 16 बताइए। ओके सर बाइनरी ना हाँ बाइनरी। ओके सर 16 या 12 16 12 का ऑलरेडी मैं कर रखा ओके है। सर हो गया बताइए 1 0 0 0 0 4 टाइम 0 सर 4 स्टार्टिंग टाइम्स आएगा या 3 टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स आएगा करेक्ट। 0 1 2 3 4 ठीक है। फैजान 7 सर डबल 1 डबल 1 डबल कैसे आ रहा है? करिए 7 को डिवाइड, 2 3 रिमाइंडर है 1, 2 2 सॉरी 2 1 रिमाइंडर है फिर से 1, फिर 2 0 ना, तब तो आपको मिलेगा रिमाइंडर 1 लास्ट में। हाँ ओके समझ। फोक्स नोटिस वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दीजिए। कोई कुछ ऑब्जर्व कर पा रहा है बाय द वे? कोई मेरे बिना बताए कुछ ऑब्जर्व कर पा रहा है? एक कॉमन पैटर्न निकल के आ रहा है यहाँ पे। For odd numbers, ऑड सर नंबर सर करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली। जितने भी आपके इवन नंबर्स होंगे, जितने भी इवन नंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल 20 12 एंड 16, वो हमेशा 0 से एंड हो रहे होंगे, ध्यान दीजिए। और जितने भी ऑड नंबर्स होंगे वो हमेशा 1 से एंड होंगे। ठीक है, होंगे या नहीं होंगे? दिख रहा है पैटर्न आपको? हाँ यस सर यस सर। ये ऐसा क्यों होता है मैं ये भी समझाता हूँ। देखिए, जब आप इसको पावर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आप किसी भी बाइनरी नंबर को 2 की पावर्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। ठीक है, कोई भी बाइनरी नंबर हो, एक्स वाई जेड कितना भी बड़ा नंबर मैं आपको दे दूं, लेट्स से आई गिव इट टू यू समथिंग लाइक दिस, कितना भी बड़ा नंबर हो एक्स वाई जेड, ये हमेशा 2 की पावर्स हैं। और 2 की पावर्स हमेशा इवन होंगी या ऑड होंगी? मोस्टली 2 की पावर्स हमेशा इवन होंगी, क्योंकि 2 ही खुद को रिपीट कर रहा है ना? राइट, 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 8, 2 into 4 is 16। तो 2 की जितनी भी पावर्स होंगी वो सब इवन होंगी, ये क्लियर है? 2 की पावर 0 छोड़ के ऑब्वियसली, है ना? ये जो बात मैं बोल रहा नहीं हूँ सर, समझ में आ रही है? 2 की पावर अगर मैं 0 छोड़ दूं, अगर इफ आई लीव द पावर 2 की, अगर इफ आई लीव 2 की पावर 0, तो सारी 2 की पावर्स इवन होंगी। और इवन नंबर्स का एडिशन भी इवन होता है, ये पता है आपको कि दो इवन नंबर्स का एडिशन कभी ऑड नहीं हो सकता। आप कोई भी दो इवन नंबर ले लीजिए और करके देख लीजिए, दो इवन नंबर्स का समेशन कभी ऑड नहीं हो सकता। व्हिच मींस मैं ये कहना चाह रहा हूं, इवन प्लस इवन विल ऑलवेज बी इवन, है ना? ठीक है, तो एक ऑड नंबर को ऑड बनाएगा कौन? ठीक है, एक ऑड नंबर को ऑड बनाएगा कौन? सिर्फ 2 की पावर 0 में वो पावर है जो उसको ऑड बना सकता है, क्योंकि 2 की पावर 0 के अलावा कोई भी 2 की पावर ऑड नहीं है। सिर्फ 2 की पावर 0 ही एक ऑड नंबर है। ये बात सही है या नहीं है?
है ना? Yes, sir. What I'm trying to say Yes, here is only the 0th power Yes, of 2. Only the 0th power of 2 is 1, which is an odd number. ठीक है, सिर्फ 0th power of 2 odd number हो सकती है. उसके अलावा आप कितना भी बड़ा नंबर ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता. All the powers of 2 are even, and evens का समेशन हमेशा even ही होगा, राइट? तो in order to make a number odd, आपकी 0th या आपकी जो आपकी ये वाली डिजिट है, इसको हमेशा 1 होना पड़ेगा. सॉरी, इसको हमेशा 1 होना पड़ेगा, राइट? इट हैज टू बी 1 इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एन ऑड नंबर, बिकॉज इसके आगे आप कितने भी जीरोस कितने भी वंस लगा दें वो 2 की पावर्स ही हैं और वो कभी भी ऑड हो ही नहीं सकती. ठीक है, तो अगर ये पोजीशन आपकी 0 है तो आप बिना देखे बिना कन्वर्ट किए, व्हाट डू आई मीन टू से हियर, बिना कन्वर्ट किए आप ये बात बोल सकते हैं कि अगर मेरी ये वाली डिजिट 0 है तो नंबर इवन है, और अगर मेरी ये वाली डिजिट इवन है, सॉरी 1 है, तो ये नंबर ऑड है. ये आप बिना देखे बोल सकते हो. बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये कंक्लूजन आपको याद रखना है. अच्छा, एक चीज से पहले मैं और बता देता हूं आपको. सिंपल है, आपको पता ही होगा. 345 अगर मैं नंबर लूं तो 5 मेरी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है या मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है? Least significant. लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है. क्यों कहते हैं इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट? इसलिए कहते हैं इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बिकॉज अगर आप इस 5 को हटाएंगे तो नंबर रह जाएगा आपका, मतलब अगर 5 की जगह पे कोई और नंबर अगर आप रिप्लेस करें, ठीक है, मान लीजिए 5 से छोटा नंबर मैं लेता हूं, क्या ले लूं? 3. मान लीजिए 5 की जगह मैं 4 ले लेता हूं, तो ये बन गया 344. कितना डिफरेंस आया? सिर्फ एक का डिफरेंस आया. 344 और 345 में कितना डिफरेंस है? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 1, राइट? बट अगर मैं इस 3 को रिप्लेस कर दूं एक नंबर छोटे से, तो ये क्या बन जाएगा? 245. समझ में आ रही है बात? और डिफरेंस कितना हो जाएगा? 100 का हो जाएगा, राइट? देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 100. तो देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है ना. सो दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. मतलब कि इसमें अगर आप कोई भी छेड़छाड़ करते हो इस डिजिट में, तो जो डिफरेंस होगा वो मिनिमम होगा. पर अगर आप जो लेफ्ट पे सबसे ज्यादा लेफ्ट पे डिजिट लिखी, सो दिस इज द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, राइट? अगर आप लेफ्ट मोस्ट डिजिट में कोई भी चेंज करते हो तो ये क्या होगा? सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस लाएगा. बिकॉज देखिए 345 से 245 डिफरेंस 100 का आ गया, राइट? सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, तो अगर मैं नंबर लेता हूं लेट्स से 12001, अगर मैं इस 1 का 2 करूं, ठीक है, अगर मैं इस 1 का 2 कर दूं, ठीक है, 12002, तो कितना डिफरेंस आया? सिर्फ 1 का आया. बट अगर इसी 12001 का मैं इस 1 को चेंज करूं, ठीक है, किसको चेंज करूं? फर्स्ट वाले 1 को, इस वाले 1 को, लेफ्ट मोस्ट 1 को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 22002. कितने का डिफरेंस आ गया बताइए? 10,000 का डिफरेंस आ गया. दिस इज 12001, ठीक है, दिस इज 12001 एंड दिस इज 22,001 या 2 व्हाटएवर इट इज, है ना? 22,000. कितने का अंतर आ गया? 10,000 का अंतर आ गया. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस डिजिट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन, मतलब चेंजिंग दिस डिजिट प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम इफेक्ट एंड चेंजिंग दिस डिजिट प्रोड्यूसेस द मिनिमम इफेक्ट. ये बोल सकता हूं मैं? कैन आई से दिस? मैथ्स की क्लास लग रही है मुझे पूरी तरह से, बट ये बताना जरूरी है. Yes, sir. है ना? ये चीजें मैथ्स में डिस्कस की जाती हैं, बट आई एम डिस्कसिंग दीस कॉन्सेप्ट्स अगेन, ताकि अभी क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत आएगी और फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए इसको मैं क्या बोलता हूं? एमएसबी, सॉरी एमएसडी, व्हिच स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड दिस इज एलएसडी. ठीक है, सो सिमिलरली अब ये तो थी डिजिट्स, पर इन्हें हम क्या बोलते हैं? आर दीस कॉल्ड डिजिट्स? नो, दे आर कॉल्ड एज बिट्स. ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? बिट्स. डेसिमल से डी लिया गया एंड वी कॉल इट डिजिट्स, पर बाइनरी से बी लिया गया, सो वी कॉल इट बिट्स. ठीक है, द टर्म इज कॉल्ड एज बिट्स. लिख देता हूं यहां पे आपके लिए, इट इज बिट्स. ये बिट्स हैं, 0 एंड 1. कितनी बिट्स होती हैं? देयर आर जस्ट 2 बिट्स. सिर्फ 2 बिट्स होती हैं, 0 एंड 1. कितनी डिजिट्स होती हैं? 10, फ्रॉम 0 to 9, राइट? तो जिस तरह से ये मेरी मोस्ट सॉरी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट थी और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट थी, उसी तरह से ये वाला 0 मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. एंड ये वाला 1 इज माय मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. इज व्हाट? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. समझ में आया? ये टर्म समझ में आया आपको? इन्हें ऐसा क्यों कहते हैं ये समझ में आया? सबको सबको समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. फैजान Yes, समझ में sir. आया? अच्छा. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? अब मैं अपनी ऑड इवन की डेफिनेशन को चेंज करता हूं कि अगर किसी भी बाइनरी नंबर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो वो नंबर इवन है, और अगर किसी भी नंबर की ऑड की लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है तो वो नंबर ऑड है. तो यानी अब से बिना देखे अगर आपको कोई भी इंसान या कोई भी कंप्यूटर अगर कोई भी बड़ा से बड़ा आपको सॉरी डेसिमल डिजिट देता है, सॉरी बाइनरी डिजिट देता है, सॉरी बाइनरी नंबर देता है शुरू से, तो आपको सिर्फ उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेक करनी है. और आप बताइए प्रियम बताइए, ये इवन होगा या ऑड होगा? बिना कैलकुलेट किए किसकी वैल्यू क्या है? Sir, ये तो odd है. क्लियरली ये ऑड है. व्हाई? क्योंकि इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट List बिट में odd है, sir. Yes, sir. तो Odd. बिना कैलकुलेट किए कि नंबर एक्चुअली क्या है, आप ये बता सकते हैं कि नंबर ऑड है या इवन है. ये बात सबको समझ में आई? आई? Yes, sir. ठीक. चलिए एक लास्ट और पूछ लेते हैं. फैजान आप बताइएगा. फैजान इवन है ऑड है? इवन है सर. इवन है. क्यों? क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है. Yes, ठीक है, sir. ठीक है. चलिए इतनी बात आप लोगों को सबको समझ में आ गई. प्रोविजन के लिए टाइम चाहिए या मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं? प्रोपोजिशनल लॉजिक Start कीजिए. Start. Next topic start कीजिए. कर दिया sir, start कर दीजिए. So the next topic which we are going to see today is propositional logic. ठीक है, propositional logic में आप सब कुछ जो डील करेंगे, you will deal with ones and zeros only. ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ट्रुथ टेबल बनाना सिखा दूं. ठीक है, तो क्योंकि कंप्यूटर में एवरीथिंग इज अबाउट 0 एंड 1 है ना, कंप्यूटर में हर चीज आपकी 0 और 1 के बारे में, which are also called as bits. तो मैं 0 1 नहीं बोलूंगा, I will call it in computer science everything deals with your bits. हर चीज बिट्स से रिलेटेड है. ठीक है, हर चीज बिट्स से रिलेटेड का क्या मतलब है कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड 0 एंड 1. और ये कितने नंबर्स हुए? 2 ही हुए. ठीक है, सो बेसिकली एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड 2. ठीक है, 0 1 एंड हाउ व्हाट इज द काउंट ऑफ 0 एंड 1? दैट इज 2. ठीक है, तो हर चीज 2 की पावर्स में कैलकुलेट होगी. नाउ लेट्स कम टू द कांसेप्ट ऑफ ट्रुथ टेबल. अगर आपको कभी भी कोई ट्रुथ टेबल बनाने को देता है, ठीक है, तो देखिए वो कैसे बनती है. इट्स अ वेरी इजी थिंग, बट लोग नहीं बना पाते हैं. 2 की पावर 0 कितनी होती है? 1. सिंपल. 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2. 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4. 2 की पावर, चलिए मैं लिख देता हूं ताकि इजी रहे. छोटा सा बनाते हैं. ठीक है, अरे जाओ यार. राइट, 2 टू द पावर 0 इज 1 एंड 1 कैसे रिप्रेजेंट होता है? सिंपली 1 से इन बाइनरी. ठीक है,
2 to the power 2, 2 to the power, sorry, 2 to the power 1 क्या होगा बताइए? सर 2 होगा सर। और 2 को हम रिप्रेजेंट कर देंगे किस तरह से? 1 0 से, ये सर। करेक्ट? 2 to the power 2 कितना होगा? 4. 4. 4 will be represented as 1 0 0. ठीक है, 2 to the power 3 होगा 8. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0 0. 000. एंड मैं और आगे भी जा सकता हूं पर मैं यहां रुकूंगा. 2 to the power 4 is 16 and 16 will be represented as 1 4 times 0. ये क्लियर है सबको? इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना? 1 1 0 1 0 0 1 0 0 and 1 4 times 0. आप 5 6 कितना भी जा सकते हो. तो ये 16 की वैल्यू है. अगर अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 16 तक के सारे बाइनरी नंबर्स लिख के दिखाओ, तो क्या आप कैलकुलेट करेंगे बैठ के? नहीं. उसका एक बहुत आसान तरीका है, वो मैं अब दिखाता हूं आपको. अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे 1 से 16 तक के सारे बाइनरी नंबर्स लिख के दिखाने हैं, तो देखिए बिल्कुल ईजी तरीका है, आपको घबराना नहीं है. 16 में कितनी डिजिट्स हैं? सॉरी, कितनी बिट्स हैं? कितनी बिट्स हैं 16 में? 5 बिट्स सर। आपको एक 5 कॉलम की टेबल बना लेनी है. एक टेबल बना लेंगे जिसमें 5 कॉलम्स होंगे. हर कॉलम एक बिट को रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, दिस इज फोर्थ कॉलम एंड एट द एंड फिफ्थ कॉलम. ठीक है, और जो बचा आपका, इसको थोड़ा सा कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना पंगा करेगा. जो बचा आपका उसको मैं कलर कर देता हूं फिलहाल के लिए, व्हिच मींस कि दिस इज नॉट द पार्ट. ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ इतने हिस्से को देखिए. अब कितने नंबर्स हैं? 16. तो मैं 16 रोज क्रिएट करता हूं. ठीक है, 1 या रोज क्रिएशन छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे. तो 16 मुझे पता है कितना है, 1 0 0. अब देखिए बहुत आसान होता है. आपसे अगर कोई भी कभी भी कहता है कि मुझे जरा रिप्रेजेंट करके दिखाओ 1 to 16 सारे नंबर्स, तो देखिए एकदम इजी है. 1 तो 1 है, आपको पता ही है. ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे 16 तक कितनी डिजिट्स हैं, सॉरी कितनी बिट्स हैं? 5 हैं. ठीक है, और है नंबर्स कितने? 1 to 16 16 है. ठीक है, 1 to 16 ऑब्वियसली 16 ही है ना. तो हम 16 बार लिखेंगे 1, बट रिपीट करते रहेंगे विद 0. सो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. 16 टाइम्स लिख लिया, मतलब 1 to 16 हो गया. चलिए, अब क्या करते हैं नेक्स्ट कॉलम में? इन योर नेक्स्ट कॉलम वी विल स्टार्ट राइटिंग इट लाइक दिस. एक सेकंड दीजिएगा. हाँ, और इससे पहले 0 के लिए, ये क्या है आपका? ये 1 ही है ना, दिस इज 1 एट द एंड. ठीक है, तो इससे पहले क्या करते हैं हम? एक 0 के लिए भी लिख लेते हैं. सो इट गोज लाइक दिस: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 टिल यू डू नॉट रीच हियर, जब तक आप यहां नहीं पहुंचो. ठीक है, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड लास्ट में फिर से 0. ये लास्ट वाला 0 अभी ड्रॉप कर देते हैं. ठीक है, लास्ट वाला 0 ड्रॉप कर देते हैं, तो ताकि आपको समझने में आसानी रहे. तो दिस इज 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 तो लास्ट वाला नंबर मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा बताइए? फैजान आप बताइए, लास्ट वाला 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? Sir, odd represent और the होगा, box. तो बेसिकली 15. ठीक है, वी आर नॉट टारगेटिंग 16, वी आर टारगेटिंग 15 इन दिस केस. ठीक है, अब आपने 0 1 लिख लिया सबने. अब 0 1 के बाद आपको पता क्या लिखना है यहाँ पे टेबल में? 0 0 1 1 0 0 1 1 देन अगेन 0 0 1 1 0 0 1 1. अगली टेबल में देखिए. ठीक है, अगली टेबल में आएगा आपका 3 टाइम्स 0. मनाश नीड टू म्यूट योरसेल्फ. ठीक है, 3 टाइम्स 0 एंड देन 3 टाइम्स 1. ठीक है, मुझे लिखने में थोड़ा कष्ट हो रहा है ऑन पेंट, बट आप समझ रहे होगे. 3 टाइम्स 0 एंड देन 3 टाइम्स 1. 3 टाइम्स 0 एंड देन 1. खत्म. अगली बार में क्या होगा? मंतशा बताइए. Yes, so 4 times 0 and 4 times 1. Correct. Then 4 times 0, then 4 times 1. करेक्ट. 4 टाइम्स 0 हो गया हमारा. 4 टाइम 1 2 3 4 1 देन अगेन 4 टाइम्स 0 2 3 4 देन 2 3. इतना डिटेल में मैंने पिछले बैच में नहीं पढ़ा था. आई वंडर क्यों नहीं पढ़ाया था, बट ठीक है. 0 अब क्या हो जाएगा? 5 times 0 and then 5 times 1. 5 times 0, 5 times 1. पक्का? No, no, 5 times 0, then 5 times 1, 5 एक सेकंड times दीजिएगा 0. मुझे, एक सेकंड. I'm getting out. ठीक है फोक्स, देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक इन दिस, और वो ये पेंट में लिखने की वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है. तो मैं एक बार 1 मिनट दीजिएगा मुझे. मैं खोल लेता हूँ रैपिड टेबल्स, इसमें लिखता हूँ, थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है. काम क्या नहीं. ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ. तो पहले तो लाइन नंबर्स डाल देता हूँ मैं. 1 2 3 4 5 6. ये लाइन नंबर्स हैं बाय द वे, ये नंबर्स नहीं. ठीक है, 9 10 11, जिससे आपको देखने में आसानी है. 14 15 एंड 16. ठीक है, और मैंने कहा था हमेशा हम 0 से शुरू करते हैं, है ना. तो चलिए 0, फिर अगला 1. ठीक है, देन अगला फिर से क्या आएगा? 0, देन अगला 1. देन 0 एंड देन 1. इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, बिकॉज़ ये बहुत काम आएगा आपका आगे चल के. ये दिस इज कॉल्ड एज ट्रुथ. ये ट्रुथ टेबल नहीं है, बट ये ट्रुथ टेबल बनाने में काम आएगा. ठीक है, चलिए.
0 1 0 1 0 1 0 एंड लास्ट में। तो अभी हम कैसे अल्टरनेटिंग कर रहे थे 0 1 0 1, अगली अल्टरनेटिंग आपकी होगी 0 0 1 1, ठीक है। तो 0 हाँ जी सर ये तो कुछ ऐसा हो गया ना कि जितने भी ऑड नंबर है सब में 0 आया है और जितने भी इवन नंबर है सब में 1 आया है। नहीं ये जो आपने अभी आप ये नंबर मैंने कहा था, ये नंबर लाइन नंबर्स हैं, ये नंबर आपके नंबर्स नहीं है, ये सिर्फ मैंने लाइन की नंबरिंग करी है। अच्छा ओके सर आप एक्सेल यूज करो ना, उसमें ज्यादा आसानी होगा आपको। इतनी देर में सजेशन नहीं देना चाहिए। अच्छा सजेशन है, मैं फॉलो करता पक्का, बट अब आधी मेहनत मैंने यहाँ कर ली, फिर मुझे फिर से वहाँ करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट में मैंने आपको बोला था 3 बार, बट 3 बार नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बोला था 2 के केस में हर चीज मल्टीपल ऑफ 2 होती है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे कितनी बार था, 1 टाइम था, मतलब अल्टरनेशन 1, फिर यहाँ पे 2 बार 0 हुआ, अब 4 बार 0 होगा, मतलब 0 0 0 0 एंड 1 1 1 1 0 0 0 0 एंड 1 1 1 1 एंड लास्ट डिजिट कितनी बार होगा बताइए, मंतशा आप बताइए। 8. 8 करेक्ट। ठीक है, अब बताएंगे हमें, प्रियम बताइए ये नंबर क्या है। सर ये तो इवन नंबर है। इवन और नहीं पूछ रहा हूँ मैं, नंबर की वैल्यू क्या है डेसिमल में अगर मैं कहूँ। सर 0 0 0 0 सर नहीं पता सर। 0 ही है ना। अच्छा वैसे हाँ सर ये तो 0 ही होगा। हाँ ये 0 सर ये 1 होगा। और ये भी 1 होगा। ये 1 कैसे होगा, 2 नहीं होगा। क्यों सर, लास्ट में 0, ओके सर 2 होगा। ठीक है, अब आप ये also 2 होगा सर। ये भी 2 होगा, ये 3 होगा, ये 2 कैसे हो जाएगा। सर 1 1 + 1 सर। 1 + 1 नहीं करना है, 2 की पावर 0 × 1 + 2 की पावर 1 × 1, अच्छा वैसे ऐड थोड़ी करना है इनको। सर मैं ऐड कर दे रहा था जल्दी से। नहीं चलिए विवेक, नेक्स्ट नंबर क्या है ये क्या सर? ये वाला नंबर क्या है, 0. ये 0 है। अच्छा वो क्या? हाँ आप क्लास में मत रहो, टीवी देख रहे हो, चलो प्रशांत आपकी बारी। 4 सर 4 करेक्ट। नेक्स्ट फैजान ये क्या है, Sir 5. करेक्ट। कैसे आया 5, So 1 2 4 8. So it's third position to 4 है. दिस इज 1 दिस इज 2 2 दिस इज 4, तो 4 yes, + 1 is 5 5. Yes. तो अब मैं आगे पूछ नहीं रहा हूँ फोक्स, आगे ये आपका 7 है, ये 8 है, ये 9 है, आप लोग कैलकुलेट करके देखें ना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है एंड ये 15 है। तो ये नंबर्स इस तरह से पैटर्न को फॉलो करते हैं, 0 1 0 1 0 1 सबसे पहले, देन 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड देन ये बात सबको समझ में आई। तो अब आपसे कोई कुछ भी पूछता है कि मुझे 4 तक के सारे लिख के दिखा दो या 6 तक के लिख के दिखा दो, तो आपको पता है कि ये नंबर्स किस तरह से लिखे जा सकते हैं, कि सबसे पहले 0 1 0 1 ऑल्टरेशन, देन 0 0 1 1, देन 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, देन 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 1, और अगर इसके भी आगे मैं चला जाता हूँ, अगर इसके भी आगे मैं चला गया तो क्या हो जाएगा 16 टाइम्स 0 16 टाइम्स 1, जिसमें 5th डिजिट इन्वॉल्व हो जाएगी, है ना। आ रही है बात समझ में, सबको बात समझ में आई। हाँ सर लेकिन सर उसमें तो मतलब 16 टाइम्स 1 लिखने का मतलब जगह ही नहीं होगा सर। सर एक बार ये क्लियर नहीं हुआ सर, ये आपका वाला हाँ क्लियर नहीं हुआ आदर्श। मतलब ये क्लियर नहीं हुआ सर, जो ये 16 टाइम आपने नंबरिंग की है 15 टाइम, सर इसका हाँ क्या है एक बार ये बताइए ना सर। ये तो नंबरिंग है, जनरली नंबरिंग है 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ये तो हाँ समझ में आया सर, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं हम, ये बताइए। ठीक है, देखिए इसका क्या चीज क्यों कर रहे हैं, कि ये क्यों कर रहे हैं हम, ये जो राइट में लिखा है मैंने, हाँ जो अभी आपने नंबरिंग की है ना सर, जनरल नंबरिंग जो है 0 1 2 3 ये 4 जनरल नंबरिंग नहीं है, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये इन नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इनको हाँ डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, ये जो नंबर लिखे, ठीक है, तो उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये निकल के आएगा। हाँ समझा समझा, हाँ 1 2 और ये 4, हाँ सर थैंक यू सर समझा। कोई भी कॉम्बिनेशन आप उठा लो, जैसे मैं अगर ये वाला उठाता हूँ 1 1 0 1, तो हाँ 1 समझ गया सर, 1 2 4 और 8 8 4 12 और 1 13, हाँ सर थैंक यू सर। हाँ क्योंकि ये 0 है, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था कि कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इजीली, पर बड़े नंबर्स में तो आपको फिर भी पूरा डिवीजन प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा। छोटे नंबर्स में आप इस तरह से कर सकते हो, ये जनरली तब की जाती है, इन टेबल्स को हम ट्रुथ टेबल्स भी कहते हैं, ठीक है। ट्रुथ ये जनरली हम तब बनाते हैं, ट्रुथ टेबल्स का कॉन्सेप्ट जनरली तब आता है जब आपसे कोई कहता है एक साथ मुझे इतने नंबर्स देखने हैं, तो तब हम ट्रुथ टेबल्स का यूज करते हैं। एक आध नंबर के लिए आप ये पूरी टेबल नहीं बनाओगे बैठ के, ठीक है, उसके लिए तो फिर डायरेक्ट डिवीजन कर ही सकते हो आप हमेशा, जैसा भी किया था। नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। अब देखिए ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो आपकी एक्सेल यूज कर लेते हैं, एक्सेल तो नहीं है मेरे में, आई यूज जस्ट गिव मी अ सेकंड, शीट्स यूज करता हूं गूगल की, और कोई बेटर तरीका नहीं है, वर्ड वगैरह भी तो रहता है, डॉक्यूमेंट यूज कर लो, चलिए ठीक है एक्सेल यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रुथ टेबल बनाता हूं मैं, ठीक है, तो 4 तक की बना लेते हैं सिंपल, तो 4 तक में मतलब या 8 तक की बना लेते हैं, तो 8 में क्या हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। 8 तक मतलब हम 7 तक ही जाएंगे, देन अगला 0 0 1, फिर पहले तो ये वाले लिख लेते हैं ना, इजी हो जाएगा 0 1 0 1 और 0 1, ठीक है। फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 और यहाँ पे 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। पहला नंबर कौन सा है प्रियम, सर ये 0 होगा, और ये वाला सर 1 होगा, ठीक है 0 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वाला कौन सा है, लास्ट वाला सर 7 होगा सर। 7 है। तो ये हो गई हमारी एक ट्रुथ टेबल। अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टन करता हूँ, 4 तक ही लेता हूँ ताकि समझाना आसान है, ठीक है। तो इनको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, एंड सिर्फ 4 तक का बनाते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, रादर सिर्फ 3 तक का ही बना रहा हूँ, तो दिस इज 0 1 2 3, ठीक है।
ये होती है आपकी ट्रुथ टेबल। जीरो, एक चीज आप याद रखिएगा, जीरो क्या है कि करंट पास नहीं हो रहा है, सो जीरो इज योर ऑफ स्टेट। जीरो क्या है, मेरी ऑफ स्टेट है। और वन क्या है, वन इज द ऑन स्टेट, ठीक है। वन क्या है, ऑन स्टेट है। जीरो और वन एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ इज ऑपोजिट। हाँ प्रियम बताइए। सर आप कंप्लीट कर लीजिए सर, फिर बताता हूँ। ठीक है, तो जीरो और वन एक दूसरे के ऑपोजिट भी। तो अगर आपसे कोई कहता है, ठीक है, रिमेंबर दिस टर्म, व्हाट इज द निगेशन ऑफ जीरो, कि जीरो का निगेशन क्या है, तो निगेशन मतलब उसका ऑपोजिट। तो द निगेशन ऑफ जीरो इज वन एंड द निगेशन ऑफ वन इज जीरो, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो द निगेशन ऑफ जीरो इज वन वेयर एज द निगेशन ऑफ वन इज जीरो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अदर टू ऑपरेटर्स, तो अभी तक हमने बात की निगेशन ऑपरेटर की। निगेशन ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक सेकंड दीजिएगा, मैं चार्ट खोलनी पड़ेगी मुझे। सो निगेशन ऑपरेटर को कई सिंबल से डिनोट किया जाता है, निगेशन ऑपरेटर, ठीक है। आइदर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टिल्डा, ठीक है, और इज इट रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जांपल टिल्डा 1 इज 0, और यू कैन आल्सो राइट इट लाइक 1 एक्सक्लेमेशन मार्क इज 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसको आप रीड करेंगे निगेशन ऑफ 1 इज 0, दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है, दोनों का सेम ही मतलब है। सिमिलरली टिल्डा ऑफ 0 इज 1, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन 0 एक्सक्लेमेशन मार्क इज 1। तो ध्यान दीजिए एक चीज कि जो टिल्डा है वो हमेशा पहले लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा बाद में लगता है। दिस इज जस्ट अ नोटेशन और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये है आपके ये क्या है आपका निगेशन ऑपरेटर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइदर बाय द टिल्डा सिंबल जो टैब के ऊपर मिलेगा आपको, और बाय द एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, समझ में आ रही है बात। तो ये क्या है, निगेशन ऑपरेटर है। अब अगले ऑपरेटर की बात हम करते हैं, विच इज योर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, एंड मतलब क्या होता है, एंड का लॉजिक समझिए। ये द टॉपिक व्हिच वी आर डिस्कसिंग। अगर आपसे कोई पूछता है आज क्या पढ़ा, कितनी बैटरी है, 3%, जस्ट गिव मी अ सेकंड, चार्जिंग प्लग इन कर लो। सर निगेशन ऑपरेटर को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे सर, क्या बोला आपने? निगेशन देखिए कुछ नहीं है, जीरो क्या होता है, जीरो मतलब कि है आपका करंट नहीं आ रहा है, और वन है कि करंट आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसी को हम निगेशन बोलते हैं, कि जीरो का ऑपोजिट वन है। हाँ, इसकी कोई डिफिनेशन है क्या निगेशन ऑपरेटर की? निगेशन ऑपरेटर का मतलब है, मतलब डेफिनेशन तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, बिकॉज डेफिनेशन ना डिफाइन करने में अगर जाऊंगा बहुत कॉम्प्लेक्स है वो। तो इसको आप बेटर है, इसको ऐसे ही समझो कि ऑपोजिट, निगेशन का मतलब ही ऑपोजिट, ठीक है। तो जीरो का ऑपोजिट है वन, और वन का ऑपोजिट है जीरो, क्योंकि जीरो पे करंट नहीं जा रहा है और वन पे करंट जा रहा है, ठीक है। तो द ऑपोजिट ऑफ जीरो इज वन एंड द ऑपोजिट ऑफ वन इज जीरो। तो बस यही निगेशन, ठीक है। अगले ऑपरेटर से डेफिनेशन समझाता हूं। तो द नेक्स्ट ऑपरेटर वी आर गोइंग टू सी इज योर एंड ऑपरेटर। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। द नेक्स्ट ऑपरेटर वी आर गोइंग टू सी इज द एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर स्टैंड्स फॉर ए, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका ऐसे होता है, एंड बी। तो जो आपका एंड सिंबल होता है उसको आप दो बार रिपीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आप रिपीट करेंगे तो वो दूसरा एंड बन जाएगा, ठीक है। वो भी उस पे भी हम आएंगे, दैट कम्स अंडर अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स। सो अभी आप पढ़ रहे हो सबसे पहले दीस कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स आर कॉल्ड एज लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये कौन से ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं हम, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। इसमें तीन ही ऑपरेटर्स होते हैं टोटल, इन टोटल जस्ट देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। द फर्स्ट वन व्हिच वी आर स्टडीइंग, जो हमने पढ़ा वो था निगेशन। सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं वो है एंड। एंड कहता है ए ट्रू होगा और बी ट्रू होगा तभी मैं ट्रू हूंगा। मतलब इफ आई हैव टू राइट हियर द रिजल्ट ऑफ एंड, अगर मैं यहाँ एंड का रिजल्ट देखूं तो ए क्या है, जीरो, और बी क्या है यहाँ पे, जीरो। तो ए एंड बी का जो रिजल्ट होगा इट विल आल्सो बी जीरो, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, चलिए प्रिया आप बताइए, ए क्या है यहाँ पे, सर 0, बी क्या है, सर 1, द रिजल्ट विल बी जीरो। क्योंकि एंड बाय डेफिनेशन कहता है कि जितनी भी चीजों को आप साथ में एंड कर रहे हो, इन दिस केस आई एम एंडिंग ए एंड बी, जितनी भी चीजों को मैं साथ में एंड कर रहा हूं, ठीक है, जब तक वो सारी वन नहीं होंगी तब तक मैं रिजल्ट जीरो देता रहूंगा। तो वन एंड जीरो मतलब इफ देयर इज एटलीस्ट वन द रिजल्ट विल, सॉरी, इफ देयर इज, अगर एक भी जीरो आ गया तो रिजल्ट हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वन एंड वन, तो वन एंड वन इज वन, ठीक है। बात समझ में आई। सो दिस इज योर एंड ऑपरेटर, कि जब तक सारे के सारे वन नहीं हो जाते तब तक ये रिजल्ट वन नहीं देगा। इसको अगर मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल में बताऊं, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ, लेट्स से फ्रेंड्स का एग्जांपल देता हूं, कि अगर बहुत अच्छी दोस्ती है, इफ यू हैव वेरी गुड फ्रेंडशिप, तो ऐसा होता है अगर आपका मूवी जाने का प्लान बन रहा है, तो इट्स लाइक कि आइदर वी ऑल विल गो और नो वन विल गो। तो वो वाली सिचुएशन है कि या तो सारे वन होने चाहिए तभी रिजल्ट वन आएगा, लेकिन अगर एक ने भी मना कर दिया, व्हिच मींस अगर इवन इफ वन ऑफ देम इज जीरो द रिजल्ट विल बी जीरो, राइट। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर का क्या यूज होता है, एंड ऑपरेटर का यूज ये, पहले तो एंड ऑपरेटर कहता क्या है, एंड ऑपरेटर स्टेट्स दैट, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, ठीक है। एंड ऑपरेटर स्टेट्स दैट इफ ऑल द वेरिएबल्स, ए और बी यहां पे मेरे वेरिएबल है, ठीक है, इफ ऑल द वेरिएबल्स आर वन देन एंड देन ओनली द रिजल्ट विल बी वन। यानी इफ ऑल द वेरिएबल्स आर वन then and then only I will be one, या then and then only result will be one। जब सारे वन होंगे सिर्फ तभी रिजल्ट वन होगा। अगर एक भी जीरो हुआ, यहाँ तो दोनों ही जीरो हैं, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे ये एक जीरो है, अगर कोई एक भी जीरो हुआ द रिजल्ट ऑफ दैट ऑपरेटर विल बी जीरो, ठीक है। अब इसको मैं फॉर्मलाइज करके लिख देता हूँ ताकि आपको अगर कभी लिखना पड़े तो देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिखा ही हुआ है, यहाँ पे चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड जो रिजल्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं इज ए एंड बी। ये आपका एंड ऑपरेटर है, ठीक है। चलिए ये है जीरो जीरो, ये मैं वही ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ 3 तक की, है ना। जीरो जीरो, देन यहाँ पे क्या जाएगा, 1 0 1 0 1 एंड 1, एंड द रिजल्ट हियर विल बी 0 0 0 एंड 1। समझ में आया। तो ये वो वाले लोग हो गए कि अगर आपका जब तक आपका सारे वन नहीं हो जाएंगे तब तक रिजल्ट वन नहीं आएगा, ठीक है। इसको अगर मैं आपको और अच्छे से कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल में सोच रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताने का कि कैसे इसको समझाऊं मैं इनको। सर सर्किट को बताओ ना सर, सभी समझ जाएंगे। सर्किट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थोड़ी किए हैं क्या। सर इजी होता है सर, मतलब चलिए आपको बच्चे मैं लोग मौका देता हूँ, आप समझाइए एक बार। नहीं सर, मैं क्यों सर, आप भी समझाइए अरे सर, वैसे सजेशन दिया सर। नहीं सजेशन आपका अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सजेशन खराब है, बट चलिए सर्किट में फिर मुझे सीरीज पैरेलल बताना पड़ेगा, फायदा क्या है ना, सीरीज पैरेलल में जाना पड़ेगा।
सीरीज पैरेलल कितने लोगों को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो सीरीज एंड पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट सॉरी, कितने लोगों को सीरीज पैरेलल पता है? और उस हिसाब से डिसाइड करेंगे ना। ये 7 लोगों को पता है सिर्फ सीरीज पैरेलल, या चलिए 10 लोग हो गए। अब बाकी लोगों को समझाने के लिए पहले मुझे सीरीज पैरेलल कनेक्शन समझाने पड़ेंगे, है ना, तो वो और मेरा ही काम बढ़ेगा। तो अभी के लिए फोक्स इतना ही समझिए कि जब तक सारे 1 नहीं हो जाएंगे एंड ऑपरेटर रिजल्ट 1 नहीं देगा। ये उन दोस्तों की तरह है कि अगर 10 दोस्तों का ग्रुप है या 15 दोस्तों का ग्रुप है, तो जब तक सारे एक पॉइंट पे एग्री नहीं हो जाएंगे, ठीक है, तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। अगर एक भी किसी ने हैंड डाउन कर दिया, जैसे अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूं, अगर किसी एक ने भी हैंड डाउन कर दिया, ठीक है, तो मेरे लिए उसका रिजल्ट फॉल्स है या मेरे लिए उसका रिजल्ट नो है। एंड नो या फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, है ना, और ट्रू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1। अब देखिए अगला ऑपरेटर होता है आपका और ऑपरेटर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पाइप। ठीक है, ये जो पाइप है ये 2 बार मैंने यूज किया, ठीक है, 1 एंड देन 2 एंड देन b। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज a और b। ओके आई जस्ट एंड में तो दिखी थी ना सबको? हाँ एंड में लिखिए। Yes, sir. ठीक है, so the second operator we are going to see is a और b। और क्या कहता है? अनलाइक एंड और ये कहता है कि अगर कोई एक भी मान गया ना तो मैं 1 हूं, which means if any one of them is 1 I am 1। तो यहां पे देखिए इट इज 0 0। रिजल्ट क्या आएगा? मंतशा आप बताइए। Also 0. करेक्ट, नेक्स्ट 1. देन अगेन 1 Then 1. Then 1. 100%। ठीक है, बिकॉज और ऑपरेटर क्या कहता है? और ऑपरेटर सेज कि अगर एक भी 1 है तो आई विल बी 1। अगर एक भी 1 है तो मैं 1 हो जाऊंगा, एक से ज्यादा 1 है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सो एंड सेज कि ऑल ऑफ देम हैव टू बी 1 इन ऑर्डर फॉर मी टू बी 1, बट और सेज कि इफ एनी ऑफ देम इज 1 आई विल बी 1। क्लियर है ये दोनों ऑपरेटर्स? तीनों Yes, sir. नेगेशन भी। यस सर। ठीक है, सर और एक बार फिर बताइएगा। कौन सा और कहता है कि अगर कोई एक भी 1 है, एटलीस्ट अगर एक 1 है, ठीक है, जैसे इस केस में 1 है ये, इस केस में 1 है ये, और इस केस में ये दोनों 1 है, अगर एक भी एटलीस्ट एक भी 1 है तो मेरा रिजल्ट 1 होगा, है ना? अच्छा ठीक है। तो ये Sir. हो गया। हाँ जी फैजान बताइए। सर अगर दोनों 1 है तो वो कौन सा कंसीडर करेगा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? कुछ नहीं कंसीडर करेगा। अच्छा वैसे आप पूछ रहे हो तो लेफ्ट वाला कंसीडर कर लेगा, वो देखेगा एक भी 1 मुझे मिल गया मैं 1 हो जाऊंगा, उसे दूसरा देखने की भी जरूरत नहीं है। Okay, sir. ठीक है, तो दीज आर योर लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो पहला है एंड, दूसरा है और तीसरा है नॉट। निगेशन ऑपरेटर को हम नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली यार तो ये आई डोंट लाइक दिस थिंग, ये जो ऊपर आती है, पर चलो मैं अलग से लिख के बता देता हूं। तो 0 का जो नॉट है वो क्या है? 1 है, और 1 का जो नॉट है वो क्या है? 0। ठीक है, सो दिस इज योर नॉट ऑपरेटर या निगेशन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आपके 3 ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली। सो आई राइट इट हियर अगेन, दिस इज ए एंड दिस इज नॉट ए, या ए नॉट, सॉरी एक्सक्लेमेशन बाद में यूज करते हैं, ए नॉट। ठीक है, आई विल कीप इट लाइक दिस, ए एंड ए नॉट। इसको बोल्ड भी कर देता हूं ताकि क्लियर रहे। ए एंड ए नॉट, तो 0 का नॉट है 1 एंड 1 का नॉट है 0। तो ये 3 आपके ऑपरेटर्स हो गए, व्हिच आर ए एंड बी, ए और बी एंड ए नॉट। ठीक है, अच्छा एक चीज नोटिस किया आपने, और एंड जो है मेरे, वो कितनी मिनिमम उसको कितने वेरिएबल्स चाहिए काम करने के लिए? क्या सिर्फ मैं ए एंड कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। दो। क्या मैं ए और कर सकता हूं? नहीं। तो मिनिमम इनको 2 ऑपरेटर्स चाहिए। ठीक है, पर नॉट सिर्फ एक ऑपरेटर पे भी काम करता है। तो सिर्फ क्योंकि नॉट एक ऑपरेटर पे काम करता है, इसको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब यूएन से वर्ड आता है, यूएन स्टैंड्स फॉर 1, राइट? और क्योंकि इन्हें मिनिमम 2 चाहिए, तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज बाइनरी ऑपरेटर्स, क्योंकि ये 2 पे काम करते हैं। तो ये एग्जांपल है आपका यूनरी ऑपरेटर का, ये एग्जांपल है आपका बाइनरी ऑपरेटर का। जैसे प्लस है, तो प्लस करने के लिए मिनिमम आपको 2 नंबर्स चाहिए ना, 2 + 3, 2 + 4, 3 + 4, 3 + 5, है ना? तो प्लस कैसा ऑपरेटर है? प्लस बाइनरी ऑपरेटर है। माइनस कैसा ऑपरेटर है? माइनस बाइनरी ऑपरेटर है। मल्टीप्लाई बाइनरी है, डिवीजन बाइनरी है, परसेंटेज बाइनरी है। ये सब कैसे हैं? ये सब बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, और बाय द वे इसी के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी के साथ हमारा, मैं बस बोल दिया क्योंकि मुझे पता है आपको मैथमेटिकल सिंबल्स पता है, वो कैटेगरी है हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं इस समय। सो दीस वर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये कौन से ऑपरेटर्स थे? ये थे मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स। दिस इज द कैटेगरी ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, और इसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। और जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, वो सारी चीजें हैं, उसमें हम एक स्पेशल ऑपरेटर कल देखेंगे, व्हिच इज द मॉडुलस ऑपरेटर। आज के लिए तो टाइम इज अप। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इनके बाद हमारे पास आएंगे आपके लॉजिकल हो गए, अरिथमेटिक हो गए। इसके बाद हमारे पास आएगा एक असाइनमेंट ऑपरेटर, देन वी विल सी रिलेशनल ऑपरेटर्स, एंड देन वी विल सी बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो अभी आपने बिट्स का कांसेप्ट देखा, बिट्स क्या होती है? 0 एंड 1, तो उसी पे बेस्ड ऑपरेटर आएंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो बहुत सारी कैटेगरी है ऑपरेटर्स की, मैंने ऑपरेटर्स से स्टार्टिंग करी है आपकी। ठीक है, ऑपरेटर्स के बाद में फिर आपका वेरिएबल और वो सारी चीजें शुरू करूंगा। ठीक है, तो समझ में आई आज की क्लास आप लोगों को? हाउ वाज द क्लास टुडे? समझ में आई? So very interesting class, sir. Yes, sir. यस सर। तो ऐसे ही रहेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चीजें ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी, है ना? तो इट विल गो लाइक दिस। तो जितनी भी चीजें हैं वो लॉजिकल है। प्लीज सेव योर डाउट्स फॉर संडे। ठीक है, एंड या कल पूछ लीजिएगा, कल की क्लास में पूछ लीजिएगा जब मैं आगे के ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, बिकॉज आज मुझे अभी कहीं अर्जेंटली निकलना है, सो आई विल हैव टू लीव द क्लास। एंड मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं कल पहले क्लियर कर लूंगा, तब क्लास में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सो नोट डाउन योर डाउट्स, मैं कल आई डील विद देम। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर कमिंग टू द क्लास, बाय बाय। Thank you, sir. Bye. थैंक यू। Bye. Thank you, sir.